So I welcome all the participants for today session regarding the topic development training, oxygen and periodization. And today our expert is Mr. Sujay John K. So you know him very well because he already take one topic 3 days back. So I welcome Mr. Sujay John K. and hand it over to you. You can start now, Sujay. Very good morning, first of all, to each and every one who is logged in on this fantastic morning. It's a great pleasure to be here among the family of Sepak Takraw players, officials, and technical officials. I'd like to thank our Secretary General, Yogendra Sir, and every other member of the Sepak Takraw Federation of India to have given us this opportunity and to use this time for coach development, sharing intelligence, and growing together. We also would like to, first of all, invite you to today's class. Our today's session will be on development training, and I introduce this as a training session for understanding what are the requirements of Sepak Takraw players to play at the elite level and how to match them from strength to strength and help our players develop all their skills, all their technical abilities, all their tactical abilities. And without much ado, I must first of all thank the visionaries behind this, our leaders of the country, our Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi ji, and our Minister of Youth Affairs and Sport, Shri Kiran Rijiju ji, for putting this thing together, this idea together, to come together in this lockdown period and share, develop, and grow as coaches to help the next generation and the current generation through this webinar. I thank the Sports Authority of India and also the Ministry of Youth Affairs and Sport for doing their best in putting this idea into practice. Now, let's move over and let's talk about our session today. We talk about sports training. Why do we need sports training? If you know for the fact that training will help bridge our today and tomorrow, what we are today and what we aim to be tomorrow, a structural manner of reaching from today to where we want to be is training. Sports performance training helps sports people train. It's a special process of preparing sports persons based on scientific principles aimed at improving the skills, improving the levels of the players, and matching them and maintaining them for higher performance capacity in different sports activities. It's a particular type of training designed to improve fitness and abilities of a given sport. I remember when I was playing Sepak Takraw and I was playing the sport for Delhi and went on also to play India, we always used to think that the other countries were so far ahead, but the technical and the knowledge that has come through the coaches today has helped us build a gap, in fact, bridge the gap and emerge as bronze medalists at the Jakarta Asian Games in 2018. What a proud moment it was for us. It makes us believe that yes, we are there among the best. So how do we get the others? Training is a tool which helps us to win. And how does it help us win? By technique, by acquisition of skills, by improving our fitness, both aerobic and anaerobic capacities, also known as lactic acid capacity, our power, our speed, our maximum strength, our playing ability, the general sports and specific fitness, and also promotes mental faculties and also socio-economic
stability. Why is it socioeconomic stability? Because players have got self-esteem, they are valued in the society, and that builds a lot of self-respect apart from self, also personal image within the society. And players who are playing at the elite level are being paid to play at that top level, getting jobs, getting scholarships in schools and colleges. So training helps you win. And that is the celebration. That last picture I played to you here is where the celebration of winning. And there is this famous quotation in English that says that nothing succeeds like success. And that is the success that we all are talking about. But training is not foolproof. There is many opportunities for many misadventures, for many accidents which lead to injuries, due to which a player cannot train and his progress is stalled and he cannot train further, which is known as detraining. This can be accidental, this can be also for certain factors which are beyond the control of a player. But injuries are something which training or bad training or overtraining gives a problem to the players and halts or is an obstacle for their development. If we look at that, why does it do that? I'm going to give down physiological effects of training because of injury or if you miss training. These are the physiological effects that happen because of detraining. Day 1 and 2, the beta endorphin and the adrenaline levels drop. The moods of the player also start to switch negatively. Day 3 and 5, 3 to 5 days, the player does not train. The muscles lose their tone and their elasticity, and the aerobic capacities or the ability of the player start falling off by 5% on the 5th day. Around day 7 and day 9, the body's ability to use oxygen, which is the maximum volume of oxygen, also measured technically as VO2 max, drops by 10%, and the less oxygenated blood is pumped into the body with each beat. So the fatigue factor also tends to pile up. By day 10, if a player misses training for 10 days, the body's metabolic rates also start to drop, and you tend to have less appetite. And what happens is that you have a tendency of gaining weight. Your BMI also gets affected. And day 11, day 13, the maximum heart rate and the cardiac output declines by 15%. The muscle tone sees much of the appreciable loss, which is very, very big deterrent to players and their performance. Imagine 15% of their cardiac output going down is a fact which is too bad. Apart from that, the mitochondrial activity also, which is responsible for energy production in muscles, also begins to fall rapidly. There are effects on day 14, 16. The muscle mass also goes back because of detraining. Therefore, because of the less amount of muscle mass, the strength and the metabolic rate also becomes slow. So what happens on day 17 and day 19, the body becomes less efficient in thermoregulation. Thermoregulation is the ability of the body to maintain its temperature. And that also starts falling on day 17 and day 19 if you miss practice for 19 long days and you're forced to spend excess of your energy in terms of cooling your body. Your internal heat is now starting to increase. Day 20 to 221, VO2 max now drops by 20%, which means that your maximum volume of oxygen, which is taken by the body, has now dropped about 20% per minute. What happens on day 22 and 25? 10 to 15% of the muscle mass is lost. And most of this muscle mass, because of inactivity, is also being replaced steadily by fat. So what happens? Your body composition is also changing. Your weight has increased and your BMI has changed. Your lean body mass has in fact gone down and your fat percentage or your fat mass has increased. Day 27 and 29 of not training leads to muscle strength dropping by a huge amount. That is as much as 30%. So this is
what are the harmful effects of not training for 30 days at a stretch, which brings down your physiological, physical, and psychological parameters, which is when the player comes back, will be coming back so weak, will be taking a lot of time to recuperate, rehabilitate, regain the strength. So that is something which should be avoided. That's the reason why right training is so important, that at least because of training or overtraining or wrong kind of training or over enthusiasm, a player can avoid injury. All right, let's move on now and let's understand what periodization is. Periodization can be defined as a logical and systematic sequence of multiple training factors in an integrative fashion to optimize specific physiological performance outcomes at predetermined time points. you know, when you actually start to identify, these are my competitions, this is the time I want my body functions, my fitness, my ability to play the games technically and tactically should be at its peak. Periodization helps a systematic variation of training in terms of specificity, intensity, and volume, which is organized into planned periods or cycles within an overall program. I'll come in, if you feel this is a little bit more technical, let me tell you that periodization is just putting your sporting calendar in the right place so that you can prepare well and your performance can be peaked. Your highest performance is achieved at the time of the competition. How is this done? This was actually understood by a Hungarian scientist, in fact, is known as Hans Seil, and he came up with this concept when he first was the first scientist in the entire world when he identified something which used to affect the body, and he called that stress. Technically speaking, stress is any internal or external factor or influence which affects the homeostasis of an individual. And homeostasis is a technical term which is known as the internal and external balance of the body. He called this theory known as the general adaptation syndrome or the GAS syndrome. Under this, you can see this, stress was actually understood. If you look at that blue graph down there, there's a small curve that you see, which is known as eustress and de-stress. Eustress, the blue part, is positive stress, which helps you perform and helps you better your performance. De-stress, on the other hand, is where your body is not able to cope up with the stress or the external influence on you. So it happens to hamper your performance. So de-stress leads to a psychological and physiological lowdown, which leads to anxiety, which leads to depression. And if it happens over and over again, it leads to chronic anxiety and chronic depression. So it disrupts the homeostasis of the body. On the other hand, if you look at eustress, which is positive stress, which helps you perform better, like motivation, like inspiration, like like you have goal settings, you have ambition. These are all examples of eustress, which are stresses which help you perform better, improve your psychological and physiological capabilities, enhances your body functions. You can read that: strengthening your body, challenging ability, your positive frame of mind, which is beneficial for mental and physical performance of the individual. So Hans Seil came up with 3 different stages of this, where de-stress and eustress can be understood. The first is the alarm reaction when you are exposed to stress. It's like an alarm which is ringing and waking you up in the morning. So your body tends to react to this. And that reaction can be positive and negative. When it reacts positively, it is adaptation. When it does not react positively and you are fighting it, there is this philosophy that he came up. In fact, this theory which he came up about stress is that when you are in a state of fight is when your abilities are better than the stress. And when your abilities are not able to match as per the requirements of the stress, you are in a stage of fight.
So remember two things: psychologically, which influence you, your mental state, which has got a great impact on how your body is ready to perform, is known as the flight syndrome, which is saying that you and your abilities are stronger and you can cope with the stress. If you do not have the abilities to cope with the stress, then you are in a fight mode and your stress is bigger than your ability. Let's move over now and let's look at this in slightly more detail. Let's look at stage number one, the alarm reaction, where the body detects and is bound to response to an external stimulus or a training stress in terms of sports performance. This usually happens and lasts for around a couple of days or at least a couple of weeks, and the athlete may experience short-term soreness or pain in the body. थोड़ा बहुत दर्द होता है बॉडी के अंदर और कुछ हफ्तों तक ये दिक्कतें बॉडी को आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये स्ट्रेस आपके ऊपर आ गया है, एक नया इन्फ्लुएंस आ गया है, आपकी बॉडी डिसाइड कर पा रही है कि क्या मेरे में एक क्षमता है कि मैं स्ट्रेस को काबू कर पाऊं। अगर आपकी क्षमता है तो आप फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। अगर आप में क्षमता नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव द एबिलिटी, देन व्हाट हैपेंस इज दैट ये ट्रेनिंग की वजह से, अगर आपने कोई हल्की सी हार्ड ट्रेनिंग कर ली तो आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, आपकी मांसपेशियां थोड़ी स्टिफ हो जाती हैं और आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस में भी एक ड्रॉप आ जाता है। मगर इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये आपकी बॉडी की रिएक्शन है। अगर आगे चल के देखिए स्टेज 2 क्या है, आपकी बॉडी अडैप्ट कर गई है इस स्ट्रेस के ऊपर। ये बाहरी एक स्ट्रेस जो आपको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके ऊपर आप काबू जब पाते हैं उसको कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, एक स्टिमुलस बाहर से आया जिसके अंदर आपकी बॉडी ने इंटरनली इवैल्यूएट किया और फिर रिस्पॉन्स दे रहा है, जवाब दे रहा है। इसके तरीके क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं? व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? न्यूरोलॉजिकल, आप न्यूरोलॉजिकली आप एग्जॉस्टेड नहीं होंगे, आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, आपको सोचने समझने और चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बात करें कि आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जो आपकी मांसपेशियां हैं उसमें भी ज्यादा शुरू में दर्द तो था, और क्योंकि आपने ट्रेनिंग जारी रखी है, आपने ट्रेनिंग छोड़ी नहीं है, बॉडी अगले गियर में आ जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो इस स्ट्रेस को काबू करने में सफल रहता है। स्ट्रक्चरल देख लिया हमने, न्यूरोलॉजिकल देख लिया, अब देखते हैं बायोकेमिकल एडेप्टेशंस। जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बॉडी के फंक्शन के अंदर है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम। आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है कि आपके मूड्स कैसे हैं, आपकी जितने केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हैं वो कंट्रोल होती हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे। अगर आपके स्ट्रेस की वजह से आपका बायोकेमिकल एडेप्टेशन, आपके एंडोक्राइन सिस्टम्स और हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, फिर आप स्ट्रेस के अंदर हो गए, आप दब गए हो स्ट्रेस के अंदर। मगर अगर आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, अगर आपने ट्रेनिंग छोड़ी नहीं है, आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं और आपकी बॉडी फिर कोप करने की कोशिश करती है, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका सेट हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स आपका अच्छा आ जाता है, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का रिस्पॉन्स सही आ जाता है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम का रिस्पॉन्स सही आ जाता है। ये तीन एडेप्टेशंस बहुत ही जरूरी हैं, जिसकी वजह से एक स्थिति आ जाती है जिसको कहते हैं सुपर कॉम्पनसेशन। This phase of super compensation is a fantastic phase which has been used to improve training. Way back, बहुत सालों पहले, करीब 100 सालों से भी पहले, ग्रीस में, इजिप्ट में, चीन में, जहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, वहां पर इस ट्रेनिंग का उपयोग किया गया था। कोई नया साइंस नहीं है ये, बहुत पुराना साइंस है ये, जहाँ पे वॉरियर्स, जो उनकी आर्मी थी, जो उनकी मिलिट्री थी, उनको ट्रेन करने के लिए ये सुपर कॉम्पनसेशन और ये लोड देने का तरीका का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं सुपर कॉम्पनसेशन क्या है। ये ग्राफ्स देख सकते हैं आप, जो ग्रीन वाला ग्राफ है वहां आप देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, आपकी बॉडी की एडेप्टेशन काफी अच्छी हो रही है। शुरू में जब आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की तरफ से ट्रेनिंग शुरू की है, तो डिप आ जाता है, एक झुकाव आ जाता है इस कर्व के अंदर। वो है कि जब आपकी बॉडी फाइट कर रही है,
आपकी होम्योस्टैटिस, जो आपका बॉडी का इंटरनल बैलेंस ट्रेनिंग की वजह से डिप कर गया है। अगर आप ट्रेनिंग छोड़ दें तो फिर आपके मांसपेशियां दर्द करते रहेंगे और आपका एडेप्टेशन होगा नहीं, बॉडी अगले गियर नहीं लगाएगी। ठीक है, अगर आप पीला वाला ग्राफ देखें, पीले वाले ग्राफ में जो जो इंडिविजुअल है उसने बहुत कम लोड लिया है, उसकी वजह से उसका जो फटीग का जो लेवल है, जो उसका कॉम्पेंसेशन लेवल है, वो बहुत हल्का रहा है। अगर आप रिकवरी देखें, जो पर्पल है कलर है, उसके अंदर देखिए उसमें बिल्कुल ही उसने ट्रेनिंग छोड़ दी है। जब वो ट्रेनिंग छोड़ता है तो बॉडी उसकी कॉम्पेंसेशन नहीं लेती है, वो गियर बदल के सेकंड गियर पे आती ही नहीं है, थर्ड गियर पे नहीं आती है, फोर्थ गियर पे आती नहीं है। जैसे कोई गाड़ी है, लाइक अ व्हीकल which is moving forward, first gear is the first gear, second gear में अगर आप मूव करते हैं तो बॉडी की तरह इंजन भी आगे बढ़ती है और ज्यादा तेजी से, और उसका परफॉर्मेंस एबिलिटी अच्छा हो जाता है, फटीग फैक्टर कॉम्पेंसेट हो पाता है। इसी वजह से आपको कहते हैं एडेप्टेशन जो है बॉडी का, जो जीरो से ऊपर, जो एक ऊपर का कर्व आप देख रहे हैं, वो है आपका सुपर कॉम्पेंसेशन फेज। वो सबसे ऑप्टिमम है जब आप ग्रीन ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग सही है और मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन को देखा जा रहा है। अगर आप बात करें कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड है, आपको मेहनत लगनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी से आपको बाहर आना चाहिए। एक कंफर्ट जोन होता है, एक दायरा होता है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप उसके बाहर जाके ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अगर आप अपनी बॉडी को पेन नहीं देंगे, एक पुरानी कहावत है, नो पेन नो गेन। अगर आप पेन की वजह से, दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से ट्रेनिंग छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मसल फट रहा हो, सांस फूल रहा हो, सांस नहीं लिया जा रहा हो, तो ट्रेनिंग जरूर रुकना चाहिए। अपने कोच को जरूर बताना है, कोचेस को जरूर देखना है कि उनके एथलीट्स, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें ये दिक्कतें हो रही हैं तो कितनी हो रही हैं। ये जो नजर है ये बहुत पैनी होनी चाहिए। आपको अपने एथलीट के सांस लेने की रेट, योर ब्रीदिंग रेट, आपके हार्ट रेट से पता लगता है कि आपकी बॉडी कोप कर पाती है या नहीं। डेंजरस कब है? एक सिंपल फॉर्मूला है 220 माइनस एज। 220 को अपनी उम्र से इसको माइनस कर दीजिए। अगर 220 नंबर है और 20 साल की उम्र का व्यक्ति ये ट्रेनिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा हार्ट रेट उसकी 200 होनी चाहिए। 220 माइनस उनकी एज 20 इक्वल टू 200। 200 इज द मैक्सिमम हार्ट रेट विथ विच यू शुड वर्क। इसके बियॉन्ड अगर आप चले जाओगे तो आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। अलग तरीके से अगर आपकी मांसपेशियां उसके साथ नहीं कोप कर पा रही हैं, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आपको हीट एग्जॉशन हो रहा है, तभी भी आपको अपने कोच को और कोचेस को अपने स्टूडेंट्स को देखना बहुत बहुत जरूरी है। सुपर कॉम्पेंसेशन एक लोड एंड एडेप्टेशन का फिलॉसफी नहीं, एक थियरी है, जहां पर आप देख सकते हैं जो लाल शेडेड एरिया, जो जीरो से नीचे वाला हिस्सा है, उसको ट्रेनिंग का इफेक्ट है। जीरो लेवल वो है जब आपने ट्रेनिंग शुरू की थी, जब ट्रेनिंग की, आपकी बॉडी लड़ रही है, जूझ रही है ट्रेनिंग के डिमांड्स के लिए, वो वाला पार्ट है लाल वाला पार्ट, जहां पे अगर आप अगले दिन ट्रेनिंग छोड़ दोगे तो उसके फायदे बॉडी को होंगे नहीं। अगर आप 2-4 दिन, एक हफ्ता कंटिन्यूअसली उस ट्रेनिंग को करते जाएं अपने कोच के कहने के मुताबिक, तो आपकी जो ग्राफ है वो नीचे से बढ़ के धीरे धीरे ऊपर आती है और नॉर्मल से भी आगे ऊपर चली जाती है, जिसको कहते हैं सुपर कॉम्पेंसेशन और पॉजिटिव एडेप्टेशन। Ideally, it is known as, it is the ideal balance of load and recovery which brings performance capacity back to a higher level. अगर हम देखते हैं अभी नेगेटिव एडेप्टेशन कैसा है, जबकि प्लेयर जो है, जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपके सेक्टर के जितने खिलाड़ी हैं, अगर वो लोड को झेल नहीं पा रहे हैं, अगर उनको रेस्ट पूरी तरीके से नहीं दी जा रही है, हर लोड के बीच में हल्का सा रेस्ट जरूरी है ताकि होम्योस्टैटिस के पास बॉडी वापस आ पाए। अगर नेगेटिव एडेप्टेशन
चलता रहा कि आपको रिकवर होने का टाइम नहीं दिया, फिर से ट्रेनिंग कर रहे हैं सुबह शाम दोपहर रात को, जरूरत से ज्यादा आप ट्रेन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि रातों रात एक हफ्ते के अंदर आप चैंपियन प्लेयर बन जाएंगे। आपने वीडियो देखा कि भैया इंडियन टीम ऐसी ट्रेन कर रही है, तो आप उनके लेवल के फिटनेस के हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग को कॉपी करते हैं। आपकी कार्य करने की क्षमता वो प्रोफेशनल प्लेयर के जितनी नहीं है, तो बॉडी वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाता है। जब आपकी बॉडी अपने लोड के हिसाब से काम नहीं कर पाती है, उसको कहते हैं नेगेटिव एडेप्टेशन। सुपर कॉम्पेंसेशन फेस नहीं आया, अंडर कॉम्पेंसेशन हो जाता है। If you look at the definition, high load or inadequate recovery adversely affects the adaptation of the individual. सुपर कॉम्पेंसेशन का ये ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक आपको समझ आए पीरियडाइजेशन के लिए, क्योंकि पूरा पीरियडाइजेशन सुपर कॉम्पेंसेशन, लोड, एडेप्टेशन, रिकवरी, इसके ऊपर निर्धारित है। सुपर कॉम्पेंसेशन की जहां तक आप बात करें, इट इज अ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको हम डिफाइन करें तो इट रेफर्स टू अ डिजायर्ड, ये कोच चाहता है कि आपकी बॉडी अपनी अलग ऊपर के गियर पे आ जाए। फर्स्ट गियर में है, सेकंड गियर में आ जाए। जब सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है और जब एडेप्टेशन आ जाती है, फिर थर्ड गियर लगाना है, और जब वहां पर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद एडेप्टेशन आ जाए तो चौथे गियर तक जाना है। फिर ऐसे करके ये सीढ़ी या पायदान के ऊपर आप चढ़ते जाते हैं, मगर कोच की निगरानी के अंदर आपको ये कार्य करना है। ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन दैट अकर्स एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड ट्रेनिंग लोड और स्ट्रेस फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ रिकवरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग उतनी होनी चाहिए जितना लोड बर्दाश्त किया जाए एथलीट से। लोड दिया, हल्का सा रेस्ट दिया, फिर से लोड दिया, हल्का सा रेस्ट दिया, फिर से लोड दिया, हल्का सा रेस्ट दिया। और जब ये एडेप्टेशन करीब 24 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद आ जाता है, तो बॉडी में अगले गियर के लिए तैयार हो जाती है। उससे पहले अगर आपने ये किया तो अंडर कॉम्पेंसेशन या ओवर ट्रेनिंग, फिटीग या एग्जॉशन हो सकता है। अब देखते हैं कि ये एक वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे समझ पाए। सुपर कॉम्पेंसेशन होता क्या है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो दिख रहा है। ये आपकी बॉडी का जो हार्ट रेट है उसको मेजर करने का इक्विपमेंट आज की डेट में आपके पास ये अलग अलग गैजेट्स हैं जो आपको पता करता है कि आपका हार्ट रेट, आपकी मेटाबॉलिक रेट का क्या लॉजिक चल रहा है बॉडी के अंदर। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, देखिए आप ये जो हरी वाली जो ग्राफ है वो अब बॉडी की एडजस्टमेंट को ट्रेनिंग की ओर लेके जा रही है। बॉडी को अब ये स्ट्रेस मिला है जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा है, और आपने उसको फिर ट्रेनिंग देने के बाद रिकवरी दिया। रिकवरी देते ही वापस बॉडी ऊपर उठ के आ रही है, और जीरो से ऊपर जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन है सुपर कॉम्पेंसेशन का, ये जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, इसको कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। और जब ये बढ़ जाती है तो अलग सेकेंड ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट किया जाता है। ट्रेनिंग बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप देखेंगे कि ट्रेनिंग में कितना रेस्ट देना चाहिए, देखिए यहाँ पर यह है कि लोड और एडेप्टेशन के बीच में सही तालमेल नहीं है, और यहाँ पर देखिए रिकवरी हो नहीं रही है और बार बार लोड दिया जा रहा है। इस कंडीशन में क्या हुआ है कि प्लेयर या तो इंजर्ड हो जाता है या तो बीमार पड़ जाता है और ट्रेनिंग पे फिर आ नहीं पाता है। ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे ट्रेनिंग को रेस्ट के साथ सही मायने से जोड़ा नहीं गया है। अब ये है जिस तरीके से जो ग्राफ आपको आगे बढ़ना चाहिए आपकी प्रोग्रेशन ऑफ ट्रेनिंग के लिए और लोड और एडेप्टेशन के लिए। तो बहुत ही जरूरी है, जितने कोचेज हैं उनको ये देखना जरूर है कि देखिए मंडे को आपने लोड दिया है, ट्यूसडे को रेस्ट दिया है, तो परफॉर्मेंस ग्राफ बहुत नीचे चला जाता है और उसको उठाने के लिए फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एडवांटेजेस क्या है प्लानिंग और पीरियडाइजेशन का? Optimization of the athlete's level of performance at predetermined time points. आप टाइम लैग्स लगा लीजिए, आप अपने टाइम जोन्स बना लीजिए, आप अपना टाइम लाइन बना लीजिए कि मेरे को इस टाइम में इतनी अचीवमेंट करनी है। 1 हफ्ता है मेरे पास या 1 महीने में मैंने अपनी स्पीड बनानी है,
1 महीने बाद मैंने अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है, 1 महीने बाद मैंने अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है, मैंने साइमल्टेनियसली जब मैं स्पीड वर्क कर रहा हूँ तो मैंने अपना स्किल भी बढ़ाना है, जिसमें मेरा स्किल एक्विजिशन लेवल, मेरी मूवमेंट इकोनॉमी, मेरी एक्यूरेसी भी अच्छा आगे बढ़ रहा है। दूसरा एडवांटेज क्या है, मैक्सिमाइजिंग स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एंड परफॉर्मेंस एडेप्टेशंस विद स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग इंटरवेंशंस। ये देखिए कोई हिट एंड ट्रायल वाली बात नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, ये एक बहुत सोची समझी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस को पीक किया जा रहा है। आपको फर्स्ट गियर में डाला जाता है, फिर ट्रेनिंग डालने के बाद आपको सेकंड गियर में उठाया जाता है। ये कोच की एक सोच है, एक सोची समझी रणनीति है ताकि वो आपको आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। आप the other thing is that reducing the athletes over training potential. ओवर ट्रेनिंग की वजह से हमने देखा था पिछले स्लाइड्स में कि अंडर कॉम्पोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इंजरी या एग्जॉशन हो जाए। अगर आप प्लान्ड तरीके से अपनी ट्रेनिंग को लेके चलेंगे तो ओवर ट्रेनिंग का जो डर है वो आपको फेस करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो डेवलपिंग द एथलीट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप ये बता सकते हैं कि 1 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, खासतौर पर जब कोई टीम तैयार कर रही हो ओलंपिक्स के लिए, 4 साल का लंबा पीरियडाइजेशन प्रोग्राम बनता है जिसके अंदर प्लेयर को हर साल कॉम्पिटिशन, छोटे बड़े उससे बड़े और ज्यादा ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग सब दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्लेटो है जहां पर आके जो इम्प्रूवमेंट, द परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कम्स टू अ फ्लैटेंड प्लेटो कैन ऑल्सो बी टैकल्ड and the adjustments of training methodologies in periodization. अब देखिए एक बड़ा साइंटिफिक है, सबसे बड़ी बात आपको मानना चाहिए, एक साइंटिफिक, सिस्टमैटिक और शेड्यूल्ड ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है which is on the basis of your biofeedback. So the aim of periodization is to help the athlete best possible performance to be attained, most importantly at the right time of the competition which has been identified well in advance. आप पहले ही कंपटीशन को जान गए हैं कि 4 महीने बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद मेरा मेन कंपटीशन है। आप अपने कोच के साथ कहते हैं सर देखिए मैंने इस बार इंडिया खेलना है और इंडिया के सिलेक्शंस मेरे अगले साल होंगे, इस साल मैं नहीं दे पाया। तो 1 साल की टाइमलाइन से आपका कोच आपके साथ काम करता है कि 1 साल बाद आपको इंजरी फ्री रखे, आपको बीमारियों से दूर रखे, आपको डी-ट्रेनिंग इफेक्ट से दूर रखे, प्लेटो से दूर रखे। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। कैसे किया जाता है? इट्स अ सिस्टमैटिक, इट इज सीक्वेंस, एक के बाद एक। ये नहीं है कि पहले फेज के बाद चौथा फेज आगे आ गया, पहले फेज के बाद दूसरा फेज आना जरूरी है। और कौन सा दूसरा फेज है वो भी प्लान किया जाता है। तीसरा फेज कौन सा है वो भी प्लान करना है कि पहली की जो को सफलता मिली है वो दूसरे में भी कायम रहे, तीसरे में भी बरकरार रहे, चौथे में भी मैं अपनी परफॉर्मेंस हाई ही लेके जा रहा हूँ। और जो मेरे को चाहिए, स्किल चाहिए, फिटनेस चाहिए, वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम आगे बढ़ सकेंगे। और हर एक चीज का, इस हर एक प्रोग्राम का डे 1 से लेके 365 दिन बाद तक का एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से आपके कोचेस आपको आगे बढ़ने में कामयाबी पा सकते हैं। और उसके लिए आपका भरोसा भी आपके कोच के ऊपर या कोच का भरोसा अपने प्लेयर के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ट्रेनिंग किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? अधिकतर जो लोग कहते हैं कि 2 तरीके हैं। Quality of training is dependent on 2 things, which is generally considered intensity and the other one is volume. अगर आप वॉल्यूम और इंटेंसिटी को समझ पाए तो ये बहुत बढ़िया बात है। इंटेंसिटी है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना लोड ले रहे हो, आप हाउ हार्ड आर यू वर्किंग। और वॉल्यूम है आप कितना ज्यादा वर्क कर रहे हो, कितनी देर तक वर्क कर रहे हो, कितना देर तक इस हार्ड वर्क को झेल रहे हो, वो है वॉल्यूम। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो डिटरमिन करता है आपकी ट्रेनिंग की क्वालिटी का। मगर ट्रेनिंग जो इंटेंसिटी है, ट्रेनिंग जो वॉल्यूम है, वो आपके रेजिस्टेंस को यूज टू भी वेरी कर सकते हैं, एक्सरसाइज
कौन सा है उसको भी सिलेक्ट करके हम वेरी कर सकते हैं। रेपिटेशन की वेलोसिटी या स्पीड कितनी है, जब आप स्पीड में नॉर्मल भाग रहे हैं तो वो नॉर्मल स्पीड है। वेलोसिटी होता है जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी दिया गया हो कि आपको सिर्फ इस डायरेक्शन में भागना है, ऐसे नहीं भागना, ऐसे नहीं भागना, पीछे की ओर नहीं भागना, बिल्कुल एक तरीका है। रेपिटेशन की वेलोसिटी क्या है, ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, सीक्वेंसेस ऑफ एक्सरसाइजेस कौन से, एक्सरसाइज के बाद दूसरा एक्सरसाइज कैसे आप शेड्यूल करेंगे सीक्वेंस में, कितना रेस्ट है बिटवीन टू सेट्स, कौन सा मसल है जो आप यूज कर रहे हो, जो बड़े मसल्स हैं जैसे आपके पेक्टोरल्स मसल्स, आपके चेस्ट मसल्स हैं, सब मसल है जो आप यूज कर रहे हो, जो बड़े मसल्स हैं जैसे आपके पेक्टोरल्स मसल्स, आपके चेस्ट मसल्स हैं, आपके डेल्टॉइड्स, आपके शोल्डर मसल्स हैं, आपके बाइसेप्स हैं, आपके ग्लूट्स हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं, आपके क्वाड्रिसेप्स हैं, ये सब बड़े मसल्स हैं। अगर आप ये वाले मसल्स यूज करते हैं तो उनकी कार्य करने की क्षमता छोटे मसल्स के मुकाबले अलग है। जो बड़े मसल्स हैं वो ज्यादा काम ले सकते हैं, ज्यादा लोड ले सकते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा है तो उनके अंदर एनर्जी जो ग्लाइकोजन या एटीपी या पीसी के सोर्सेस भी, जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी ज्यादा होता है। अब वॉल्यूम की अगर बात करें, जो एक दूसरा वेरिएबल है जो हम पहले ही बात कर रहे हैं, हमने पहले ही इसके अंदर जो एरोज बनाए हुए हैं उसके अंदर वॉल्यूम बात किया है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स और रिपीटेशंस। ये है जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। वॉल्यूम अगर हम गेम में बात करें तो ड्यूरेशन भी होगा, कितनी देर तक आपका प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, 20 मिनट खेल रहा है, 10 मिनट खेल रहा है, 15 मिनट खेल रहा है, रिपीटेशंस कई होते हैं, स्किल वर्क होता है, आप वॉल के साथ खेल रहे होते हो, तो आप अपना एक्सरसाइज के वेरिएशंस को समझ पाए जब आप अपने प्लेयर को आप ट्रेनिंग दे रहे हो। वर्कआउट स्ट्रक्चर, कौन से मसल्स को कितनी देर तक आप ट्रेन कर रहे हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या आप सर्दी में ट्रेन कर रहे हो, क्या आप गर्मी में ट्रेन कर रहे हो, क्या आप ह्यूमिडिटी में ट्रेन कर रहे हो, क्या आप डायरेक्ट हीट के अंडर ट्रेन कर रहे हो, क्या आप अंडर वाटर ट्रेन कर रहे हो, क्या आप स्विमिंग पूल में ट्रेन कर रहे हो, क्या आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस किसी तरीके की यूज कर रहे हो। ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, या आप जिम के अंदर हो, एयर कंडीशन है या नहीं, आप कार्डियो कर रहे हो तो फिर क्या आपके पास वेंटिलेशन है या नहीं, एयर सप्लाई है या नहीं। ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपकी ट्रेनिंग की क्वालिटी को डिटरमिन करती हैं। सिर्फ इंटेंसिटी और वॉल्यूम भी नहीं, इन चीजों को भी अगर आप अपने नजरों में रखोगे, आप कंट्रोल में रखोगे कि तो आपको कामयाबी मिलेगी। अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। इन्हीं के दम पर आप अपनी ट्रेनिंग और पीरियडाइजेशन सेट करते हैं। ये प्रिंसिपल्स बदलते नहीं हैं, ये आप बहुत साइंटिफिक और टेक्निकल हैं कि जब हम खेलते थे तब से ये यूज किया जा रहा है, और ये रीढ़ की हड्डी मान लीजिए आपके पूरी पीरियडाइजेशन की। बायोलॉजिकल इंडिविजुअलिटी, कि आपका जो स्टूडेंट है, जो आपका ट्रेनी है, वो कितनी उम्र का है, उसने कितनी ट्रेनिंग पहले की हुई है, वो कितना लोड झेल सकता है, क्या वो लड़का है, क्या वो लड़की है, ये सब देखना। क्या वो कौन से लेवल का प्लेयर है, क्या वो नेशनल लेवल का प्लेयर है, क्या वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, इज ही स्टेट लेवल प्लेयर, is he a junior player, is he a beginner. All these components come inside biological individuality, which is prognostic training and the data of the player. Adaptation, the law of adaptation. You do not change the load. अगर लोड आज आपने पहली बार उसको अपनी ट्रेनिंग को 5 किलो या 5 रेपिटेशंस या 50 रेपिटेशंस हैं, जहाँ पे उसको दिख रहा है कि आपका स्टूडेंट उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है, आप अगले दिन आते ही या 5 मिनट में आते ही उसका लोड चेंज नहीं करोगे। ये नहीं बोलोगे कि चलो अब आप 10 किलो के साथ काम करो या 10 मिनट तक रेपिटेशंस करते रहो। आप ये लोड को कंटिन्यूस करीब 14 दिन या 28 दिन तक रखे रहिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो लोड के साथ उसका रिएक्शन कैसा है, क्या वो झेल पा रहा है। अगर नहीं झेल पा रहा है, वो लग रहा है कि वो गिरने वाला है, चोट लगने वाली है, उसको उसकी बॉडी उस लोड के साथ नहीं झेल पा रही, तो ट्रेनिंग लोड करना बहुत जरूरी है इनका। अगर वो झेल पा रहा है, वो 24 दिन के बाद अगर वो if he's able to have an adaptation to the load, then you move the load up.
The next third principle is that of load and overload. The principle of load and overload is absolutely good. It is what we had discussed in the principle of supercompensation. The progression of load is what we have said. The progression of load must be from simple to complex, from one level to the other. एक step की तरह आप अपना load बढ़ाएंगे, बढ़ाया, उसको stagnate किया, थोड़ी देर तक 14 दिन या 28 दिन तक, जब आपने देखा कि अब ये मेरा प्लेयर ये लोड आराम से ले पा रहा है, अब उसको तकलीफ हो रही है, आराम से ऑटोमेटिकली ये लोड ले पा रहा है, 25 रेपिटेशन 30 रेपिटेशन तो आराम से कर रहा है। फिर आप पहले वो 2 से कर रहा था, इस तरीके से आप लोड के साथ प्रोग्रेस भी करेंगे, लोड के साथ रैप भी करेंगे। इंटरडिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम, जिसको कहते हैं इंटेंसिटी इंटरडिपेंडेंस, वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी, आप कितनी देर तक उसको वो लोड दे रहे हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ द लोड, स्पेसिफिसिटी होता है कि आपको आपके डायरी में नोट होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को दवाई प्रिस्क्राइब करता है, आपको अपने एथलीट से अपने ट्रेनिंग को वो लोड प्रिस्क्राइब करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आज 28 तारीख है, 28 तारीख in the month of April, I have given him this load. Now the next time, after 1 week or after 2 days, after 4 days, 6 days, you keep on recording how the physiological or the individual's response to the load actually comes into. Now, trainability and continuity is the fact that training में break नहीं आनी चाहिए, ट्रेनेबल होना चाहिए बच्चा, कोई इंजर्ड नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अगर आपने ये 9 प्रिंसिपल्स रखे हैं तो आपको बहुत आसान रहेगा इसको आगे लेके जाने के लिए। अभी हम देखते हैं कि एनारोबिक ट्रेनिंग ये आपका बॉडी सिस्टम है जो अलग अलग तरीके से मेटाबॉलिज्म करके आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको आराम से लो इंटेंसिटी पे लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जहाँ पे बॉडी को सांस लेके आपकी ऊर्जा देने के लिए मौका दे रहा है। वो लो इंटेंसिटी भी हो सकती है, मॉडरेट इंटेंसिटी भी हो सकती है, हाई इंटेंसिटी भी हो सकती है। अब ये कैसे आप करेंगे, क्योंकि आप इसको ये समझना बहुत जरूरी है कि एनारोबिक ट्रेनिंग और एरोबिक ट्रेनिंग में फर्क क्या है। एनारोबिक ट्रेनिंग है जहाँ पे यू विल बी वर्किंग ऑन स्पीड, जहाँ पे the intensity is very high and the durations will be very less. So that is something that you have to work on. Speed endurance training is something which is very is what is speed endurance. And speed training is when you're doing speed repetition work and you're doing speed work that is normal. Speed endurance is also a factor when you can have locomotor speed, which is your ability of an individual to sustain your high levels of speed for long durations or long distances. If you look at speed endurance, this can be in 2 factors, which is production training, speed endurance production, and speed endurance maintenance training. Okay. Let's move over and let's look at how musculature is trained. On this, specific muscle training is divided broadly into 3 categories, where your muscle strengthening happens, which is known as muscle hypertrophy, where the muscle size is increasing. That's because your intensity of your exercise has made your muscle grow. जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, जब आप ताकत की एक्टिविटीज करते हैं, तो इस ट्रेनिंग की वजह से आपके जो मसल के साइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसको कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो फंक्शनल ट्रेनिंग भी है और बेसिक ट्रेनिंग भी है। अगर आप मस्कुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग करेंगे, व्हिच इज अ लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस ट्रेनिंग, और स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो मसल एंड्योरेंस में काम आती है, वो और जो दूसरा तरीका है जहाँ पे आप अपने मसल्स पे काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट। अगर आपकी मांसपेशियां टाइट हो, अगर आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट
कम हो, तो जब तक आप स्ट्रेच करके अपने मांसपेशियों को खींच के, बैलिस्टिक वे हो सकता है, डायनामिक नहीं हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग हो सकती है, स्ट्रेच एंड होल्ड हो सकता है, पीएनएफ टेक्निक्स होती हैं, काफी सारे फ्लेक्सिबिलिटी के तरीके हैं जिससे आप फ्लेक्सिबिलिटी को ट्रेन करके बढ़ा सकते हैं। जो लास्ट है वो है कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप टेक्निक ट्रेनिंग कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, आप मूवमेंट एक्यूरेसी कर सकते हैं, स्किल को आप अच्छी तरीके से करने के तरीके कर सकते हैं। दीज आर हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग कैन बी वर्कड आउट। अभी हम देखते हैं हाउ टू लुक एट पीरियडाइजेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस। अब देखिए, आपको सबको मालूम है कि वी ऑल नो that the Olympics and the Asian Games come once in 4 years. Sepak takraw is an Asian game sport. So there is a gap of 4 years where the periodization will last for 4 years, and these competitions will have to be identified and targeted in those years of development. जहाँ तक हम बात करें, इसको कहते हैं मैक्रो साइकिल। सबसे ऊपर पीरियडाइजेशन में सबसे बड़ी चीज जो पूरे साल की ट्रेनिंग होती है उसको कहते हैं मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल के अंदर छोटे साइकिल्स और होते हैं जिसको कहते हैं मीजो साइकिल। मीजो साइकिल्स के अंदर भी छोटे चीज होते हैं जिसको कहते हैं माइक्रो साइकिल्स। माइक्रो साइकिल्स के अंदर होता है हर दिन का सेशन। पूरे साल का सेशन जो है वो माइक्रो साइकिल, 2 या 3 महीने का सेशन होता है मीजो साइकिल, और जो हफ्तों का सेशन है उसको कहते हैं माइक्रो साइकिल, और जो हर दिन का सेशन है उसको कहते हैं ट्रेनिंग सेशन। मोनोसाइकिल होता है जब एक साल के अंदर एक कंपटीशन, सिर्फ एक कंपटीशन। अधिकतर प्लेयर्स जो हैं वो जो बच्चे हैं जो शुरुआत में आ रहे हैं उनको मेन होता है कि उनका स्कूल का कंपटीशन है, पूरे साल में शायद एक कंपटीशन होता है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा और एडवांस्ड है तो फिर वो स्कूल का कंपटीशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन भी खेल रहा है, 2 कॉम्पिटिशन्स एक ही साल के अंदर, तो उसको कहते हैं बाईसाइकिल पीरियडाइजेशन। क्योंकि मोनोसाइकिल में एक कंपटीशन है एक साल के अंदर, और 2 कंपटीशन जब हो जाता है तो उसको कहते हैं बाईसाइकिल, और जब 3 कंपटीशन एक साल के अंदर आ जाते हैं तब होता है कि वो ट्राई साइकिल। ये साइकिल्स नहीं है जिसके आप मोनोसाइकिल, बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल है, ये है कि कितने नंबर ऑफ कंपटीशन। मोनो मतलब एक कंपटीशन, बाई मतलब 2, मतलब ये 2 कंपटीशन एक साल के अंदर, और ट्राई मतलब 3 कंपटीशन एक साल के अंदर। आपको स्टेट भी खेलना है, आपको नेशनल भी खेलना है, अगर आप इंडियन टीम में हैं तो आपको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी खेलने हैं, या आप इंडियन टीम में हैं आपको 3 अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स खेलने हैं, या आपको इंटरनेशनल फेड कप खेलना होगा, या आप किंग्स कप खेलने जा रहे होंगे, या आप सुपर सीरीज खेलने जा रहे होंगे, या आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे होंगे, या आप एशियन गेम्स खेलने जा रहे होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका कंपटीशन या आपका लेवल के हिसाब से आपके गोल्स क्या हैं। अब चल के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज। पीरियडाइजेशन डिवाइड्स द ईयर, द होल ईयर, ये हमने पहले ही बताया आपको, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। आपकी कॉम्पिटिशन्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो जिस टाइम पे कॉम्पिटिशन्स नहीं है उस पीरियड को ऑफ सीजन कहते हैं। कॉम्पिटिशन से ठीक 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते पहले, या 1 महीने पहले, या 2 महीने पहले आ जाता है प्री सीजन कॉम्पिटिशन। इन सीजन मतलब कॉम्पिटिशन सीजन, और बाद में कहते हैं पोस्ट सीजन मतलब कॉम्पिटिशन खत्म। ऑफ सीजन जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, प्री सीजन मतलब कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। ये अब मेरी कंपटीशन पीरियड है, मैंने अपनी पीरियडाइजेशन इस टाइम के लिए बनाया है कि मेरी पीक परफॉर्मेंस इस कंपटीशन पीरियड में सबसे टॉप रहे। मेरे को कोई चोट नहीं होनी चाहिए, मेरे को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मेरी स्पीड सबसे बेस्ट होनी चाहिए, मेरे स्किल्स इससे बढ़िया नहीं हो सकते। इस टाइम पे मेरे को ये स्किल्स चाहिए, और मेरी ट्रेनिंग ने मेरे को यहाँ पे पहुंचाया है, क्योंकि ये मैंने 4 महीने या 1 साल पहले अपने कोच के साथ बात की है, और मैंने समझा है, और हम लोगों ने मिलकर प्लान किया है। और जब कंपटीशन खत्म हो जाए, इस कंपटीशन के टाइम पे आप 100% दे रहे हैं, हाई इंटेंसिटी, हाई वॉल्यूम, आपको खुद नहीं पता कि आप कितना आउटपुट दे रहे हो, क्योंकि परफॉर्मेंस आपके ओपोनेंट के ऊपर है। अगर आपको कोई इजी मैचेस मिल गए तो फिर इंटेंसिटी ऑफ द मैचेस आर लेस, मगर जैसे जैसे आप जीतते जाओगे कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। अब एनालाइज करते हैं कि पीरियडाइजेशन कैसा है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैक्रो साइकिल है एक पूरे साल का प्लान।
या 1 साल से बड़ा प्लान, जो सबसे मास्टर प्लान है कि 1 साल के अंदर मेरे को क्या क्या अचीव करना है, 1 साल बाद मेरे में मेरी स्पीड ये होनी चाहिए, मेरा स्टैमिना ये होना चाहिए, मेरा एंड्योरेंस ये होना चाहिए, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को अगर बढ़ानी है, मेरी टैक्टिकल एबिलिटी मेरे को ये बढ़ानी है। तो ये सब गोल्स मैंने साल के शुरुआत में लगा दिया है, वो मेरा मैक्रो साइकिल मेरे को करके देगा। मीजो साइकिल होता है जब तो 1, 2 या 3 महीनों का साइकिल एक में जुड़ जाता है, ये माइक्रो साइकिल के अंदर आता है। और माइक्रो साइकिल जो है वो सबसे छोटा है, जो वीकली प्लान है, जो हफ्तों का प्लान कहते हैं। और लास्ट में हर दिन का प्लान या सेशन प्लान या डेली सेशन प्लान ये होता है, जिसकी वजह से आप अपनी पीरियडाइजेशन को समझ पाते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, जहाँ पे पीरियडाइजेशन और ट्रेनिंग चल रहा है 6 साल के छोटे बच्चे के लिए 19 साल तक का लंबा पीरियड है ये। हाई परफॉर्म 6 to 19 ईयर्स, मतलब करीब करीब 13 साल का लंबा ये प्लान है। 6 to 10 ईयर्स के लिए जो प्री प्यूबर्टी है, जो 11 से 14 साल की उम्र का है वो प्यूबर्टी एज कहलाता है। इनमें आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस नहीं दे रहे हैं, आप एथलीट को बना रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं आप 6 to 10 ईयर्स में। 6 to 10 ईयर्स में आपने गेम को इंट्रोड्यूस किया है, जो बेबी लीग्स कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं कि बच्चों को आपने एक शौक की तरह से एज अ लेजर एक्टिविटी यू आर एक्सपोजिंग द चाइल्ड टू द स्पोर्ट। एथलेटिक फॉर्मेशन where you start telling them, you know, this is strength and this is speed and this is, जब तक बच्चा 15 साल में आ जाता है उसको अपनी टैक्टिकल ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, मास्टरी हो जानी चाहिए एक तरीके से। जब वो 19 साल पे आ रहा है कि उसके स्किल्स परफेक्ट है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटाइजेशन ऑफ स्किल एक्विजिशन, तो ये आपने अचीव कर लिया है 19 साल में आते आते। दैट इज व्हेन अ प्लेयर हैज बीन matured। 15 to 19 years is the time when you have been able to help the player mature and now give him a realistic goal, whether he can be an elite player or whether he can be a high performance player। अगर हम आगे लेके चलें, डिजाइनिंग ये एग्जांपल है ऑफ अ टोटल एनुअल पीरियडाइजेशन प्लान। ये एनुअल ट्रेनिंग प्लान भी है, आप सबसे ऊपर देखिए एनुअल ट्रेनिंग प्लान। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का हो सकता है। जब वो 4 साल का होता है उसको कहते हैं क्वाड्रीनियल। क्वाड्रीनियल मतलब 4, क्वाड मतलब 4, क्वाड्रीनियल मतलब 4 साल का प्लान। और ये 4 साल के प्लान को हम एक साल करके अगर हम लेंगे तो वो मैक्रो साइकिल आ जाता है। वो मैक्रो साइकिल 1 साल का प्लान है, जहाँ पे आपको प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिटिव फेज, ट्रांजिशन फेज, प्रिपरेटरी फेज 1, कॉम्पिटिशन 2, जहाँ पे 2 कॉम्पिटिशन्स हैं। आप थोड़ा if you try to recollect, we have identified 2 competitions in 1 calendar year. It is known as a bicycle periodization plan. Now let's look down at how the macro cycle is being broken up. ये mesocycles हैं, जो महीनों के mesocycles हैं। आपके पास 12 महीने हैं, जिसके अंदर आप एक मैक्रो साइकिल बनाते हैं। फिर माइक्रो साइकिल्स हैं, जो हफ्तों के प्लान हैं, जो आपको वीकली शेड्यूल देता है कि हर महीने को आप कैसे ब्रेकअप कर रहे हैं। आप इसको उल्टा भी अगर देखें, लेट्स लुक एट इन द रिवर्स वे। There will be around say 7 micro plans which make one microcycle। 7 सेशन प्लान एक माइक्रोसाइकिल में घुस जाते हैं, ठीक है। जब 2 या 3 माइक्रोसाइकिल्स होंगे तो मतलब कि आपके पास 7 हफ्ते हैं। इस प्लान में अगर आप देखें, इस प्लान के हिसाब से आपके पास 4 माइक्रोसाइकिल्स हैं जो एक मीजोसाइकिल बना रहा है, ठीक है। और एक मीजोसाइकिल है जो आपको 1 महीने का प्लान दे रहा है। तो 4 हफ्ते, 1 महीना, ये 4 हफ्ते जो थे वो है माइक्रो प्लान्स, ये 1 महीना जो है वो है मीजो प्लान, और फिर ये जो 12 महीने हैं वो जाके बनते हैं एक
macro plan. तो ये दिस इज एन एग्जांपल. आपके सेशंस भी अगर आप डेली प्लान में भी आप उसको ब्रेकअप कर सकते हैं. एक दिन में कहीं आप मॉर्निंग सेशन ले सकते हैं, इवनिंग सेशन ले सकते हैं. कई चीज़ों में तो आप आफ्टरनून सेशन भी ले सकते हैं, 3 सेशंस भी लेते हैं. मगर बहुत सोच समझ के प्लान किया जाता है कि कितना लोड मेरा एथलीट, मेरा प्लेयर झेल पाएगा. Now let's look at microcycle in a detailed manner. The microcycle consists of mesocycles, microcycles, and individual sessions. ये पूरा उसके अंदर आता है. It's around for a 1 year duration usually. And if you look at a small macrocycle that I have shown you in terms of an example, it takes the training for the Olympics or the Asian Games as the bigger plan, which can be 4 years or longer, known as the quadrennial plan. इसमें आपने ऑफ सीजन, कॉम्पिटिशन सीजन, कंपटीशन के बाद ट्रांजिशन सीजन, उसके बाद फिर ऑफ सीजन आ गया है, जो पिंक के जो ऊपर आपको सेकंड लेवल पे आ रहे हैं. हर महीने के हिसाब से बांटा गया है. आपका साल जनवरी पे शुरू हो रहा है, जनवरी, फरवरी और शुरू के मार्च के जो हफ्ते हैं वो आपका ऑफ सीजन में आ रहा है. और फिर मार्च के जो दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते हैं, और फिर अप्रैल के दूसरे, तीसरे और चौथे सीजन है, वो आपका कंपटीशन पीरियड में आ गया है. ऐसे करके हमने साल की शुरुआत में ही अपना ट्रेनिंग प्लान आइडेंटिफाई करना है. स्टूडेंट के साथ, अपनी ट्रेनिंग के साथ बैठ के आपने देखना है कि मैं इस प्लेयर को स्कूल लेवल तक ट्रेन कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ट्रेन कर रहा हूँ, या रीजनल लेवल तक ट्रेन कर रहा हूँ, नेशनल लेवल तक ट्रेन कर रहा हूँ, या इंटरनेशनल लेवल तक ट्रेन कर रहा हूँ. ये आपके गोल्स आपके प्लेयर की काबिलियत के हिसाब से बनाए जाएंगे. You have to work these as per the ability of your plans. अब मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप एक एनुअल कैलेंडर, एक मैक्रो साइकिल ऑफ पीरियडाइजेशन बनाने वाला हूँ. अब शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका प्लेयर कौन है, आपकी प्रायोरिटीज कहाँ है, मैं कहाँ ट्रेन करूँगा, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे कितनी गर्मी है, वहाँ पे पानी मिलता है या नहीं, किस टाइम पे ट्रेन करूँगा, धूप में, छाँव में, शाम को या अर्ली मॉर्निंग. ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके वेरिएबल्स या क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग को इफेक्ट करते हैं. उसके बाद भी आप फिर देखेंगे कि आपके पास इक्विपमेंट कौन कौन से हैं. क्या आपके पास सपोर्ट के लिए इक्विपमेंट हैं, सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज के लिए, ड्रिल्स के लिए कोन्स हैं, हर्डल्स हैं, बार्स हैं, जिम्नेशियम है, वेट्स हैं, वेट ट्रेनिंग एरिया है. अगर ये सब हैं तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेनिंग प्लान सेट करते हैं. अपना फिर प्लेयर के साथ बैठ के आप उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये चीजें आप करेंगे कि आपको ये एनालाइज करना है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के साथ आप कैसे काम करेंगे. मेरी प्लेयर की ताकत क्या है, मेरी प्लेयर की कमजोरी क्या है, मेरे प्लेयर के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, और उसके साथ कितने कंपटीशन हैं, कितने प्लेयर हैं उस सिलेक्शन ट्रायल के लिए, उस कंपटीशन में कौन कौन सी टीम्स हैं, उन कंपटीशन में क्या मेरी टीम चैंपियन टीम बन सकती है या पहले राउंड में हारेगी, या कैसे है, ये आपको पहले अंडरस्टैंड करना है. अगर आपको लगता है आपको पहले राउंड में हारेगी तो आपको अभी से तैयारी करनी है कि वो अपनी performances, the team will be able to raise the bar of their performance ably with your plans over there. Second thing, competition. When is the competition? Is it a state level competition? It is a national level competition, or is it an international level competition? These are all that you have to identify. Now, the next very important thing is that आपको identify करना है कि date क्या है उस competition की. Please identify the date. And now go back and calculate how much time do you have. Do I have 1 month? Do I have 2 months? Do I have 1 week? Do I have 6 months? Do I have 1 year? You have to identify and calculate now in reverse order how much time do you have. Ideally, you should have close to around 6 months minimum, maximum. Ideally. There are many competitions you come to know just about say 2 दिन बाद हो रहा है, 4 दिन बाद हो रहा है, but you have
you have the ability to meet that demand because you have trained your players well, right? So you are realistically preparing your players with real timelines. So let's go back 6 months and let's look at this. Let's take the time as a hypothetical time of May to June, जब आपके कंपटीशन हो रहे होंगे तो आपने क्या किया है, प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर लिए, आप कहाँ ट्रेन करोगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इक्विपमेंट फैक्टर्स सब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, डेट्स पता लग गए कब हो रहे हैं कंपटीशन, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है मई या जून में आपके नेशनल चैंपियनशिप्स होने वाले हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपके पास 6 महीने हैं आप उसकी तैयारी करने के लिए। अब देखते हैं हम आगे कैसे अपनी कंपटीशन, प्री कंपटीशन, ऑफ सीजन या ट्रांजिशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए आपका नेशनल कंपटीशन जो हमने नीचे देखा था इन द मंथ ऑफ मई जून, वो आपका कंपटीशन पीरियड है। उससे पहले मार्च के अंदर आपका प्री सीजन है, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, अप्रैल, मई, अप्रैल एंड मार्च अप्रैल 2 महीने हैं जहां पर आपने प्री सीजन आइडेंटिफाई किया है। उससे पहले जो जनवरी टू फरवरी है, जनवरी फरवरी 2 मंथ्स जहां आपने प्री सीजन प्रिपरेशन और ऑफ सीजन रखा हुआ है। 6 महीने का टाइम है आपको मई जून तक अपने प्लेयर का परफॉर्मेंस बनाने के लिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑफ सीजन में, वो भी मैंने लिख के दिए हैं आपको, यू कैन लुक एट इट। यू आर लुकिंग एट स्किल, फिटनेस, कंडीशनिंग, वर्कआउट्स आर डन, bullpens are done, video training is done, feedback is given कि पिछले साल आपने क्या क्या गलती दी थी, emphasis होगी to build strength, build fitness, build conditioning, build very importantly जो off season का top priority होता है skill acquisition, और skill के अंदर mastery is which is done in the off season time. Pre competition sign के अंदर what you do is maintaining your fitness, increasing your skill, training with more amount of bullpen and video work, you're building better skills. आप पहले skill बनाए हैं, अब आप और better skills बना रहे हैं जिसमें आप accuracy दे रहे हो, जहाँ पे आप balance देख रहे हो, जहाँ पर precision देख रहे हो, जहाँ पर आप movement economy देख रहे हो, जहाँ पर violations देख रहे हो, बहुत अच्छे आप advanced skills दे रहे हो अपने players को। और फिर आप maintain प्री सीजन है, सिर्फ 1-2 महीने का टाइम है कंपटीशन से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे आप इंजरीज नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर आप मैच प्रैक्टिसेस लेंगे, जहाँ पर आप डेवलपमेंट ऑफ स्किल विद रिस्पेक्ट टू मैच रिक्वायरमेंट्स, जो कंपटीशन की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से। पहले नॉर्मल मतलब प्लेयर्स के साथ खेलेंगे मैचेस, फिर थोड़े अच्छी टीमों के साथ मैचेस लगाएंगे आप, फिर जो चैंपियन टीम है, अगर आपकी टीम चैंपियन है तो आप रनर्स अप टीम के साथ मैच लगाइए या किसी और स्टेट के चैंपियन टीम के साथ लगाइए, अपने एज ग्रुप से अच्छी टीमों के साथ मैच रखाइए, मगर फिटनेस मेंटेन रखना है क्योंकि जब आप कंपटीशन में आ रहे हो, आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का, अप्रैल का महीना निकल गया, 6 महीने आपके प्रिपरेशन में निकल गए हैं और आपका एंड्योरेंस बन गया है, आपका स्किल बन गया है, आपकी फिटनेस बन गई है, आपकी कंडीशनिंग सॉलिड है, आपके एडवांस स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपका टीम वर्क बहुत बढ़िया है, और अब आप कंपटीशन में मई जून में उतर रहे हो जहाँ पे आपके शार्पन स्किल्स हैं, आपकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंसेस सबसे टॉप पर हैं, आप स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स ले रहे हो। जब आपका कॉम्पिटिशन मई जून में खत्म हो गया तो जुलाई अगस्त में आप पोस्ट सीजन कॉम्पिटिशन में, जहाँ पे आप स्किल को भी बनाए रखते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, प्लेयर को थोड़ा रिकवर करने के लिए भी टाइम देते हैं, मगर इस हर एक दौरान आपको अपने प्लेयर का लोड, आपका लोड का एडेप्टेशन आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो सुपर कॉम्पेंसेशन में है या अंडर कॉम्पेंसेशन में है। अब चल के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द mesocycle has to offer. The mesocycle, like I told you, are monthly cycles which have got weeks also under them. मीजोसाइकिल के ऊपर मैक्रोसाइकिल है, 2-4 मीजोसाइकिल मिलके एक माइक्रोसाइकिल बनाते हैं, एक मीजोसाइकिल में काफी सारे माइक्रोसाइकिल्स हैं। मीजोसाइकिल को मंथली साइकिल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर 4 हफ्ते का एक मीजोसाइकिल होता है, और मीजोसाइकिल्स कैन बी इवन लॉन्गर देन 4 वीक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आता है स्टैग्नेशन, तो स्टैग्नेशन ना रहे उसमें मीजोसाइकिल्स को बड़ी अच्छी तरीके से प्लान करना पड़ता है कि इस हफ्ते, इन 4 हफ्तों में मेरा गोल क्या है,
इस हफ्ते में, इस 3-4 हफ्तों में मैंने स्पीड बनाया, मैंने स्किल बनाया, मैंने कितना मैच प्रैक्टिस रखा, मैच प्रैक्टिस में मेरे प्लेयर ने कैसे खेला है, am I able to रिकॉर्ड दैट, कितने गलत पासेस दिए हैं, कितने स्मैशेस अच्छे लगाए हैं, सर्विस कहीं में कहीं अनफोर्स्ड एरर्स तो नहीं कर दिए हैं, रिसीविंग उसके 1 पाँव की है या 2 पाँव की है, ये सब देखा जाता है उसके अंदर, खासतौर की एक्यूमुलेशन, ट्रांसम्यूटेशन और रियलाइजेशन स्टेजेस के अंदर। ये मीसोसाइकिल का एक सिंपल एग्जांपल है जहाँ पे आपके प्रिपरेटरी, प्री कॉम्पिटिशन, टेपरिंग ऑफ, कॉम्पिटिशन एंड ट्रांजिशन फेज है, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इंटेंसिटी 60% से लेके 30% है। ओवर डिस्टेंस आप कितना एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, किस टेम्पो पे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कहीं पे वो 5% पे कर रहा है, कहीं पे वो 10% पे कर रहा है, कहीं पे वो 0 से 5% पे कर रहा है। वो ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे उसकी रिकवरी, वो उसकी compensate चल रहा है। Now let's move on to cycles. These are the weekly cycles, and the smallest and the most basic training cycle of the structure is known as the microcycle. This is 1 week. 1 week के अंदर क्या होता है, 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन एक माइक्रोसाइकिल के अंदर बन पाते हैं। So these 7 days are what constitute one microcycle, and this microcycle targets very specific, बहुत specific है कि इस हफ्ते में मैंने स्पीड का कौन सा कंपोनेंट बनाना है, मैंने मूवमेंट स्पीड बनाना है, मैंने स्पीड एंड्योरेंस बनाना है, मैंने अपना क्या है स्पीड रेपिटेशंस करने हैं, मैंने अपना लोड के ऊपर क्या स्ट्रेंथ पे काम करना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है क्या, मैं कितने अपने 1 रेप मैक्स में कितना काम कर रहा हूँ, 60% पे काम कर रहा हूँ, 70% पे काम कर रहा हूँ। इंटेंसिटी इज वेरी क्लियर ओवर हियर। ये आपका एक सिंपल एग्जांपल भी आई हैव गिवन ओवर हियर। मैं यहाँ पर आपको 3 माइक्रोसाइकिल्स एक ही टीम के लिए दे रहा हूँ, जहाँ पे जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, जो आपका फर्स्ट 3 या फर्स्ट 2 प्लेयर्स हैं, उनका जो स्टार्टर्स हैं, जो स्टार्ट करेंगे आपके मैच को, वो हैं। जो बेंच पे बैठे हैं, जो रिजर्व प्लेयर्स हैं आपके, जो किसी को थक गया तो आप रिप्लेस करते हैं, या कोई चोटिल हो गया तो आप रिप्लेस करते हैं, उनका भी मीसोसाइकिल या माइक्रोसाइकिल मैंने आपके लिए बना के दिया है यहाँ पे। और जो रिजर्व्स हैं, जो टीम से बाहर हैं, उनका भी मैंने माइक्रोसाइकिल का एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। 2 वीक्स तक, 1 वीक तक एक माइक्रोसाइकिल चलता है। अब चल के बात करते हैं जो हमारा टॉपिक बिल्कुल फोकस कर रहा है, हाउ विल यू ट्रेन ड्यूरिंग ऑफ सीजन। आपने मैक्रोसाइकिल देखा, मैक्रोसाइकिल में सबसे लंबा पीरियड होना चाहिए आपका ऑफ सीजन ट्रेनिंग, और ये तब हो पाएगा जब आपने साल के शुरुआत में अपने कॉम्पिटिशन्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो आपको 6 महीने मिलते हैं अपनी परफॉर्मेंस को पीक करने के लिए। सो योर माइक्रोसाइकिल has got around 4 to 5, 6 months ideally for your planning to start, how I'm able to peak my performance after 6 months. Off-season occurs during the non-competitive period of the calendar. Major emphasis on this period is about the base level of condition, endurance, tolerance to more intense training by increasing the volume, not the intensity itself. ये इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, इंटेंसिटी ऑफ सीजन में बहुत लो रहता है, बहुत कड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता, बोझा लेके चल रहे हैं, रेपिटेशंस आपके जरूर हाई होंगे मगर इंटेंसिटी आपकी लो रहेगी। ये हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग है इसके अंदर, जिसके अंदर आपकी रिकवरी फेज है उस पर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। Foundation of your entire athletic training lies in your off season, because this is where your recovery works, in your cardiovascular efficiency index is what really comes in, your VO2 max, your oxygen intake, your cardiac output, your inspiratory reserve volume, your expiratory reserve volume, your tidal volume, vital capacity. All of this is being built up, while at the same time also a little bit of work is done on increasing your muscular size, but not through extensive, intensive exercises. They are worked by known as hypertrophy, where your muscle cross-section area is increased, more number of muscle fibers are there. I'm sorry, the muscle fibers inside your muscle do not change.
आपकी मसल फाइबर्स जब आप पैदा हो गए हैं वो उतने ही रहते हैं जितने आपके पास हैं उम्र में। जब आप बढ़ जाते हैं उनका साइज जरूर बढ़ जाता है, ये इसलिए कहते हैं जब साइज बढ़ जाता है तो ताकत आ जाती है। तो एम ऑफ सीजन का क्या है? टू रीगेन बेस्ट ट्रेनिंग कंपटीशन स्टेट। पिछले कंपटीशन में मेरा सबसे बेस्ट स्टेट कम से कम वो तो मैंने अटेन करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कैसे? लो ट्रेनिंग वॉल्यूम, हाई ट्रेनिंग लोड को अवॉइड करके, डेवलपिंग फैक्टर्स के लिए, वर्किंग ऑन specific exercises that decrease the intensity of load and increase the tactical training and the technical training under competition conditions. Off-season training की बात और हम देखें तो off-season is a period which is divided into 3 phases on the basis of training goals and priority. यहाँ पे hypertrophy, endurance एक goal है, second goal होता है basic strength and power. अगर हम हाइपरट्रोफी की बात करें तो एंड्योरेंस फेज है जहाँ पे हम एंड्योरेंस पे काम करते हैं। वो 6 हफ्ते से लेके 1 हफ्ते का लंबा पीरियड होता है जहाँ पे आप वर्क करते हैं। लो इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम, जैसे हमने बताया, लीन बॉडी मास को बढ़ाने का है। आपके बॉडी मास इंडेक्स जहाँ पर आपके बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर आपका लीन बॉडी मास है, आपका फैट मास है, धीरे धीरे आपका फैट मास घट रहा है क्योंकि आप हाई रिपीटेशंस दे रहे हो, आपका वॉल्यूम ज्यादा है और आपका एंड्योरेंस बढ़ रहा है, आपकी मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है। फिर आपको देखें और मॉडरेट इंटेंसिटी रहता है 50 to 75% है। 1 रेपिटेशन मैक्स से ज्यादा आप देते नहीं हो क्योंकि वॉल्यूम आपने ज्यादा रखना है, रेपिटेशंस आपने ज्यादा रखना है, सेट्स आपने ज्यादा रखना है। 10 से लेके 20 रेपिटेशन, 3 से लेके 6 सेट का, बेशक आप लोड कम है। अब देखिए ये छोटा बच्चा भी है, उसको ज्यादा मतलब ज्यादा वर्कआउट नहीं कराना होता है। ये बेशक एक चीज है कि वेट बेरिंग जॉइंट्स के ऊपर वेट रखना ठीक नहीं है। ऑफ सीजन हाइपरट्रोफी और एंड्योरेंस के अंदर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि microcycle is designed to switch into a recovery mode which has got volume, intensity, preparing for the next stage of the periodization calendar. ऑफ सीजन में बेसिक स्ट्रेंथ फेज है जहाँ पे हाइपरट्रोफी और एंड्योरेंस फेज आ जाता है। उसके बाद है ये ट्रेनिंग लोड हल्का सा इंक्रीज होता है जहाँ पे स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स के लिए, जैसे सेपक टक्रो के अगर हम बात करते हैं, आपका हैमस्ट्रिंग्स हैं, आपके ग्लूट्स हैं, आपका टॉर्सो है, आपके काव्स हैं, आपके स्पॉट जंप्स हैं, आपका रोटेशन इन दी एयर है, आपका काइनेमैटिक्स है। उसके हिसाब से आपका बॉडी ओरिएंटेशन है, उन मसल्स पे स्पेसिफिक स्ट्रेस किया जाता है कि उनको तैयार किया जाए ताकि मूवमेंट में एफिशिएंसी आ जाए। नाउ लेट्स मूव ओवर टू बेसिक स्ट्रेंथ फेज, जो हमारा उसके अंदर स्ट्रेंथ फेज के अंदर 80 to 90% ऑफ द रेपिटेशन व्हिच इज वेरी वेरी लेस। कहाँ पे हम 20 से लेके 30 रेपिटेशन लगा रहे थे, अभी उसमें 20 से 30 रेपिटेशन नहीं हो रहे हैं, अब सिर्फ 4 से लेके 8 रेपिटेशन हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ भी बनाना है। प्लायोमेट्रिक्स यहाँ पे बहुत अच्छा सुझाव है जहाँ पे ऑफ सीजन स्ट्रेंथ और पावर आ सकता है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लायोमेट्रिक्स होता है, एक्सप्लोसिव पावर बनती है, ड्रिल्स होती हैं जो इसके अंदर आप मैच सिचुएशंस को सिमुलेट करते हैं, मगर लो वॉल्यूम रहता है हर वक्त। ऑफ सीजन के अंदर स्ट्रेंथ पावर फेज है जहाँ पे हाई इंटेंसिटी रहती है मगर रेपिटेशंस बहुत ही कम रहेंगे। जहाँ पे आप 90% इंटेंसिटी में चले गए तो आपका मतलब है कि आप सिर्फ 1 या 2 या 3 रेपिटेशन से ज्यादा नहीं। लो वॉल्यूम, जब लो वॉल्यूम है तो आपके रेपिटेशंस भी बढ़ जाएंगे। ऑफ सीजन स्ट्रेंथ या पावर फेज के अंदर देख रहे हैं आप रेजिस्टेंस बैंड्स की, जैसे स्मैशिंग के लिए ज्यादा पावर आ जाएगा, इसके लिए इंक्रीज क्या होगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग लोड्स, कंडीशनिंग ऑफ इंटेंसिटी और अटेंशन टू स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ये है आपका प्रायोरिटी। और क्या घटेगा, आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम। अब ऑफ सीजन के पावर फेज में आप ज्यादा पावर पे नहीं काम करते हैं, नॉन स्पेसिफिक रहता है क्योंकि गेम कंट्रोल रहता है और ज्यादा वो मैच सिचुएशंस के ऊपर ही आप उसका पावर और स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि वो एरोबिक
एंड्योरेंस जो आपने बनाया है वो है बेस आपकी पूरी ट्रेनिंग के लिए. Now let's move to off-season strength for power, focusing on strength, speed, acceleration, resisted runs, moderate hills, hill running has started, methods for, and respect for the rest is also there. Let's move to the power phase, speed repetitions, aerobic qualities, specialized locomotor abilities. Off-season power training will have great importance for players because positional players are concerned. Sepak takraw players are typically very well in terms of explosive movements, jumping, diving, kicking. To increase this power, one must actually have a lot of strength component into it, but with low intensity and maximum volume, which will build a lot of maximum velocity. Drills that will train explosive power like jumps and throws to help you build the torso. Off-season requires a lot of quick reflexes, ability to anticipate and react. Reflexes have to be very, very sharp. That is a big, big component over there. I have written how you can try to do that. In kinesthetic awareness, body control is the ability to move effectively in acrobatic movements with power and reflexes. Elite players के लिए बहुत ज़रूरी है changing their directions rapidly in mid-air. Acrobatics and gymnastics combination है sepak takraw, तो इसलिए बहुत important है कि kinesthetic awareness players में ज़रूर आए. Unilateral exercises, offset loading, compound lifts से ज़रूर बन जाते हैं. इसके बाद आपका ऑफ सीजन खत्म हो गया है. ट्रांजिशन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो कनेक्ट करता है ऑफ सीजन को आपके प्री कॉम्पिटिशन पीरियड के साथ. इसके अंदर ब्रेक्स देने चाहिए. हाई वॉल्यूम के साथ साथ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. अब प्लानिंग अ सेशन है जिसके अंदर फोकस एरियाज हैं. आपका प्लानिंग अ सेशन, फिटनेस एरियाज, ये वेरिएबल्स हैं, मेथडोलॉजी क्या है, एक सेशन को आप कैसे प्लान करते हैं, इंडिविजुअल सेशन को, आपका प्लेयर क्या है, आपका फोकस एरिया क्या है, फिटनेस है, कंडीशनिंग है, टेक्निकल है, टैक्टिकल है, आप कितनी इंटेंसिटी पे काम कर रहे हैं, कितने वॉल्यूम पे कर रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन तक काम कर रहे हैं, आपकी मेथडोलॉजी क्या है. शुरू कर रहे हैं आप वार्म अप के साथ, फिर आप ड्रिल्स ले रहे हैं, फिर आप स्किल्स ले रहे हैं या स्ट्रैटेजी ले रहे हैं या फिटनेस ले रहे हैं या बाद में टीम बिल्डिंग के साथ कूलिंग डाउन जरूर करेंगे क्योंकि दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट to bring the tone back of your muscles and your physiology so that the body is able to recover well. उतने ही पेन्स कम करेंगे जितना वेरिएबल्स को आप जरूर रखिए. फन, बेशक एलीट प्लेयर हो उसको भी फन चाहिए, उसको भी मजा आना चाहिए. जरूर दीजिए अपने प्लेयर्स को कि वो कितना अच्छा आज ट्रेन करके आया है. ब्रेक्स जरूर दीजिए जहां जहां आपको देखे कि गर्मी ज्यादा हो रही है, पानी की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज हो गई है. एक ग्रुप को आपने ब्रेक दे दिया, दूसरा ग्रुप कर रहा है, पहला ग्रुप वापस आ गया, दूसरा ग्रुप पानी पीने चला गया. ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं. डिजाइनिंग अ सेशन, इसके अंदर हम अलग अलग पोजीशन के हिसाब से पोजीशनल प्ले, सर्विस, फिर जो आपके अटैकर्स हैं, जो आपके रिसीवर्स हैं, जो आपके सेटर्स हैं, वो आप एक सेशन में कैसे प्लान करेंगे हाई वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी को. उसका एक अच्छा एक रिफ्लेक्शन है ये यहाँ पे. किस तरीके से आप स्क्वाट्स, डेप्थ जंप्स को, ब्लॉकिंग को, ब्लॉकिंग मतलब कि ब्लॉक्स के साथ आप कैसे वर्क कर पाएंगे, प्लायोमेट्रिक्स के साथ, वेट ट्रेनिंग के साथ. प्लायोमेट्रिक्स मतलब जंपिंग एक्सरसाइजेस हैं, आप बॉडी वेट के साथ काम करते हैं. एंकल वेट्स के साथ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ आप कितना काम करते हैं. सेशन प्लानिंग के अंदर ये एक एग्जांपल है जिस तरीके से एक सर्किट बनाया हुआ है. इसमें स्पीड ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाई वॉल्यूम, लो इंटेंसिटी का एक अच्छा दिया है. वो शुरू कर रहे हैं स्क्वाट जंप से, फिर आके फर्स्ट टच पे आ रहे हैं, चाहे 5 या 10 स्क्वाट जंप किए होंगे, 1 टच करी 10 किए होंगे गोल के साथ, फिर थाई कंट्रोल ड्रिल की ओर भाग रहे हैं, फिर शटल रन के पास आ रहे हैं, फिर बर्पीज कर रहे हैं, फिर वापस आके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रनिंग कर रहे हैं जो एजिलिटी रन्स होती हैं कोन्स के साथ या मार्कर्स के साथ, और फिर लास्ट में आके फिनिश करते हैं सर्विस एक्यूरेसी ड्रिल के लिए या स्मैश एक्यूरेसी ड्रिल के लिए. इस तरीके से
जब आप बढ़ेंगे तो आपका कोर स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपका एंड्योरेंस, आपका स्किल एक्विजिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मूवमेंट एग्जीक्यूशन है वो बढ़ जाता है। सेशन प्लान जब आप करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, वेट ट्रेनिंग के हिसाब से ये है जो आप कर रहे हैं, जहाँ पे स्क्वाट्स हैं, सिंगल आर्म ओवरहेड थ्रोज हैं मेडिसिन बॉल के साथ, लैटरल बॉक्स पुशऑफ्स हैं, साइड थ्रोज हैं मेडिसिन थ्रोज, ताकि आप कोर फिटनेस और हवा में अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं उस पर काम कर सकते हैं। इट मेक्स यू फास्टर, when you become faster you got better core presence, your core coverage increases because you become agile, you are stronger, so you become less susceptible to fatigue, and your lactic acid tolerance increases, your reaction time and your sharp reflexes are coming over. And last and the most important part of your off season is the fact that your technique is perfect at that point of time. That is supposed to be your goals. एक चीज याद कीजिए, हमने जरूर बात की है लोड के लिए और अडेप्टेशन के लिए। अडेप्टेशन के साथ आपकी डाइट बहुत जरूरी है, आप कैसा न्यूट्रिशन कर रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा गर्मी में कर रहे हैं तो कितना आप रिहाइड्रेट कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस आप रिप्लेनिश कर रहे हो, कितना आप अपनी बॉडी को फोर्टिफाइड कर रहे हो, आप जितना पसीना है उसमें से कितना निकल गया है, मिनरल्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, विटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। आपको इन सब चीज़ों का, अगर आप बहुत हाई लेवल का एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत हाई इंटेंसिव, सो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ प्रोटीन्स, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ मतलब रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फैट्स ऑल्सो। कभी ये मत सोचिए कि फैट खाना गलत है, हाँ जंक फूड खाना जरूर गलत है। यू शुड ईट सेंसिबली। अपनी कोच के साथ बैठ के बात कीजिए, और अगर आप किसी को जानते हैं जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है या आपकी टीम के साथ कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, तो अपना एक बैलेंस्ड डाइट बनाइए। रिमेंबर द डेफिनेशन balanced diet is that it is a diet which has all the nutrients in the required proportions. So a player, if he's working very intense, he needs a different kind of a diet. A player who's working low needs a different diet. And how to eat, boiled खाना है, fried खाना है, तड़के के साथ खाना है, या रोटी खानी है, या चावल खाना है, this is what पराठे खाने हैं, what am I supposed to eat, कितना खाना है, all of that has to be determined very, very importantly. The last and the most important thing is rest. Rest and sleep is very, very important. Enough sleep will help you recover, get you back onto your homeostasis and get you into the super compensation mode. Rest is very, very vital. It's like a battery which has gotten discharged. And you have to have your own session targets. अपने players के साथ आपको बात करना चाहिए, realistic goals रखिए उसके लिए। जब आप शुरू में periodization में आ जाएं कि बेटा देखो ये आपने पिछले सीजन में किया था, ये मैं चाहता हूँ कि आप करें। प्लेयर आपके साथ बात करें, पेरेंट्स बात करें, real session targets timeline के साथ। Then you get into visualization. Keep yourself motivated. Motivation प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेयर मोटिवेटेड काम कर रहा है तो कोच को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेयर को मोटिवेटेड रखे, तो वो फास्टर काम कर सकता है, फिटर रहेगा। प्री सीजन में आपको 100% मिलेगा। और पॉजिटिविटी, अपने सेशंस को पॉजिटिव बनाइए। जब प्लेयर थका हुआ जाए उसको मोटिवेट कीजिए, उसका पीठ थपथपाइए, गिव हिम एनकरेजमेंट। This is going to be very, very important because energy sapped हो जाता है player. He's totally drained out. And that's the time when your words, managing stress for the player through your gesture, is going to be very, very important. Keeping the player and you and the entire team motivated. Always be ready to play. ये तो एक player के से होता है जब हर टाइम खेलने के लिए रेडी रहते हैं। ये प्री सीजन में रहे या हो रहे, मगर जरूर ये याद रखिए कि ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, कि ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो फिर इंजरीज हो सकती हैं, जो हैमस्ट्रिंग पोज होती हैं, क्रैम्प्स होती हैं, उन सब से बच के रहना है। स्ट्रेन्स हैं, स्प्रेन्स हैं, इन सब से बचना है। इलनेसेस हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस लेवल भी काफी डाउन हो जाता है। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी, वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये मेरा आखिरी स्लाइड है जहाँ पर मैं आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। ये कैलेंडर था पिछले साल का
जो हमारा सीनियर नेशनल सेपक टाक्रो चैंपियनशिप जो रांची झारखंड में हुआ था दिसंबर 2020 में, इसके हिसाब से अपना एक पीरियडाइजेशन कैलेंडर बनाएंगे। दूसरा, जो 23वां जूनियर नेशनल था, 23rd जूनियर नेशनल सेपक टाक्रो चैंपियनशिप्स जो हैदराबाद तेलंगाना में हुए थे 11th to 15th दिसंबर, देखिए इसका अगर आप पीरियडाइजेशन बना पाएंगे तो 6 महीने का टाइम आप कैसे डिवोट करेंगे अपना ऑफ सीजन, अपना प्री कॉम्पिटिशन सीजन, अपना कॉम्पिटिशन सीजन, आपका ट्रांजिशन सीजन के लिए। और सब जूनियर नेशनल्स जो जनवरी 11 को इस साल हुए थे, जो 21वां था संस्करण था सब जूनियर नेशनल सेपक टाक्रो चैंपियनशिप्स का, जो कडप्पा आंध्र प्रदेश में खेला गया था। 3 पीरियडाइजेशन आपको बनाने हैं और वो आपके साथ उम्मीद करते हैं कि जो सेशंस मिले वो आपको रहा। ये एक समरी है कि पीरियडाइजेशन के लिए आज हमने क्या क्या देखा और ऑफ सीजन में उसका गोल किस तरीके से रहता है। Well, I think I've overshot my time. I'd like to thank each and every one of you, especially the players who keep on going. And of course, I have to thank our Prime Minister and our Sports Minister, Honorable Shri Narendra Modi and Shri Kiran Rijiju ji, for all the support that they have given us, the federations, the Sports Authority of India, the Ministry of Youth Affairs and Sports, and of course the Sepak Takraw Federation of India shall be working with talented players and getting through the talent from one level to the other. Remember this one last line: respect and stay disciplined, not just as players but also as coaches, to fight this pandemic. You have to stay indoors, you have to stay safe. बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो आप खुद कर सकते हैं घर के अंदर, उन सबको कीजिए। अपने कोचेस को, अपने प्लेयर्स के साथ बात करना है और उनके शेड्यूल्स घर पे भी दे सकते हैं। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच।